Hello everyone, welcome once again to our channel. In this video we are going to do miscellaneous exercise on chapter 1. Okay, so let's start with the first question. The question 1 is show that the function f from R to this set. Now this set is x belongs to R where x lies between -1 to 1. It is defined by f of x which is equal to x upon 1 plus mod x where x belongs to R. We have to show that this function is 1 1 and onto. Okay, so do you remember mod x? Mod x you have to take it as x when x is greater than equal to 0 and it is minus x when x is less than 0. Same way, when you take this definition of mod x in the given function fx, it becomes x upon 1 plus x when x is greater than equal to 0 और यहाँ पे जो दूसरा फंक्शन हो जाएगा वो x अपॉन 1 माइनस एक्स व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो केसेस हो रहे हैं, एक x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक x लेस देन इक्वल टू 0. मतलब दो हमारे पास डोमेन जो है वो दो पार्ट में ब्रेक हो रहा है. ठीक है, तो अब क्या करना है, जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनके लिए हमें अलग शो करना पड़ेगा, ऑन टू है और 1 1 है, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है उसके लिए हमें अलग प्रूफ करना पड़ेगा कि ये 1 1 एंड ऑन टू है. ठीक है, जब दोनों ही केसेस में ये 1 1 ऑन टू हो जाएगा मतलब ये पूरा फंक्शन 1 1 ऑन टू हो जाएगा. सो लेट्स डू दिस. Okay, let's take the case 1 when x is greater than equal to 0. So for x greater than equal to 0, our fx is x upon 1 plus x. अब 1 1 चेक करना है. ठीक है, ये क्वेश्चन है शो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, मतलब शो करना है. तो हम डेफिनेशन लेके चलेंगे f of x is equal to f of y. So let us take f of x is equal to f of y. So when you take f of x is equal to f of y, this means that you have x upon 1 plus x is equal to y upon 1 plus y. Now cross multiply this, so you will get x in bracket 1 plus y which is equal to y in bracket 1 plus x. क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस x इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू y प्लस y इंटू एक्स. नाउ वाई एक्स एंड एक्स वाई दे आर द सेम थिंग, सो दिस गेट कैंसल. सो यू हैव x इज इक्वल टू y. ठीक है, तो जब हमें ये कंडीशन मिल जाती है x इज इक्वल टू y, वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई. So this is true for all x and y. ये हमने x y कहाँ से लिया था, हमारे डोमेन से. ठीक है, therefore the function is 1 1. फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया. Okay, now for onto what we have to do, again we will use the definition. That means for y belongs to the codomain, we have to find a x in the domain such that f of x is equal to x upon 1 plus x. Now this x upon 1 plus x is equal to y. What we have to do, we have to write this x in terms of y. Okay, so how you are going to do this, cross multiply this, so you have x is equal to 1 plus x into y. So this gives x is equal to y into y plus yx. ठीक है, x वाला टर्म हम इधर लेकर के आ जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू वाई. नाउ टेक x कॉमन, सो यू हैव 1 माइनस वाई इज इक्वल टू वाई. यहाँ से हमें मिल क्या रहा है, यहाँ से हमें मिल रहा है x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 minus y. ठीक है, now if you remember the range of this question, so the range is from -1 to 1. मतलब x जो यहाँ पे जो हमारा कोडोमेन है, जो ये हमारा y है. ठीक है, y जो y की वैल्यू आएगी वो कहाँ से कहाँ तक आएगी, -1 से लेके 1 के बीच में, मतलब -1 और 1 को इंक्लूड नहीं करना है. ठीक है, सो एज यू कैन सी इन दिस केस दैट यू हैव x इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई. मतलब जो तुम्हारा y है वो तो तुम्हारा 1 से छोटा ही है. ठीक है, तो यहाँ पे कभी भी ये नेगेटिव नहीं होगा. तो ये जो हमारा टर्म आया है y अपॉन 1 माइनस वाई, ये वैलिड है. ठीक है, सो दैट मीन्स द टर्म एंड 1 यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि दैट y इज़ नॉट इक्वल टू 1. सो ये डिफाइंड हो रहा है ये टर्म. सो दैट मीन्स यू हैव, okay, so you can see this that this y upon 1 minus y is valid because y is not equal to 1. Therefore the function is onto. तो f क्या हो गया, onto हो गया. Now we will consider case 2 where x is less than 0. Now again the same part, when x is less than 0 you have the function f of x as x upon 1 minus x. Now we have to show that this function is 1 1. तो हम वही सेम डेफिनेशन लेके चलेंगे, let f of x is equal to f of y. So you can write let f of x is equal to f of y. So according to this we have x upon 1 minus x is equal to y upon 1 minus y. Cross multiply this, you will get x in bracket 1 minus y is equal to y in bracket 1 minus x. So multiply this, you have x minus xy which is equal to y minus yx. xy और yx सेम टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगे, साइन भी दोनों का सेम है, सो इट गेट कैंसिल. सो यू हैव x इज इक्वल टू y. ठीक है, x इज इक्वल टू y आ गया. हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई एंड दिस इज ट्रू फॉर ऑल एक्स वाई दैट बिलोंग्स टू आर. सो देयरफॉर द फंक्शन इज f is 1 1.
In this case also f is 1 1. Now we will show the next part, last part of this, that is onto. So you have to consider the same definition for this, that for y belongs to the codomain, we have to find a x in the domain such that f of x is equal to x upon 1 minus x. अब ये x upon 1 minus x क्या होता है हमारा y. तो इसमें भी हमें क्या करना है, we have to write this x in terms of y. Okay, so what you can do, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y इन ब्रैकेट 1 माइनस एक्स. सो दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू y माइनस वाई एक्स, सेम एज वी हैव डन इन द फर्स्ट पार्ट. सो y माइनस एक्स को यहाँ पे लाएंगे, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू y. देन यू कैन टेक x कॉमन, सो इट इज़ 1 माइनस वाई इज इक्वल टू y. यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉरी ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी ये प्लस हो गया. So you have x is equal to y upon 1 plus y. Now this case is for x less than 0 है ना, x less than 0 है, तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या होगी, -1 तो है नहीं क्योंकि -1 हमारा एक्सक्लूडेड है टर्म, तो ये हमारा यहाँ पे वैलिड है, जो y upon 1 plus y आ रहा है. सो दिस इज वैलिड बिकॉज y इज़ नॉट इक्वल टू -1. सो देयरफॉर द फंक्शन इज onto. सो एज यू कैन सी f is onto. So in both the cases we have that function is 1 1 and onto, therefore this complete set, that complete f is 1 1 and onto. Okay, now let's take the next question. We have to show that the function f from r to r given by fx is equal to x cube is injective. Injective क्या होता है, इंजेक्टिव होता है 1 1 फंक्शन, तो हमें बस शो करना है कि ये फंक्शन हमारा 1 1 है. So let's do. Okay, so before writing this proof, first we will see where the maps of some numbers will go. Like if you have 0 क्यूब क्या हो जाएगा 0, ठीक है. माइनस हाफ का क्यूब करेंगे तो कहाँ जाएगा, -1/8 पे. देन -1 विल गो टू -1 माइनस, नाउ दिस इज 1/2, दिस विल गो टू 1/8, 1 विल गो टू 1, ठीक है. तो हम देख रहे हैं नेगेटिव नंबर पे मैप हो रहे हैं, 0 0 से मैप हो रहा है, और पॉजिटिव से मैप हो रहा है, और यहाँ से जो है वो हर एक नंबर मैप हो रहा है, ठीक है. तो इसका मतलब ये 1 1 तो है, हमें प्रूफ करके दिखाना है. सो फॉर 1 1 एज वी डू, लेट f of x इज इक्वल टू f of y. जब भी शो वाले क्वेश्चन आएंगे स्टार्टिंग ऐसी ही करनी है, लेट f of x इज इक्वल टू f of y. देन यू हैव टू टेक योर फंक्शन, जो भी फंक्शन डिफाइंड है वो ले लेंगे. यहाँ पर x क्यूब है, यहाँ पर y क्यूब है. नाउ यू हैव टू टेक द क्यूब रूट ऑफ बोथ. सो क्यूब रूट ऑफ बोथ लेंगे तो x इज इक्वल टू y आ जाएगा, एंड देयरफॉर द फंक्शन इज 1 1, f इज 1 1. सो कैन यू टेल मी, वैसे तो इसमें पूछा नहीं गया, लेकिन अगर ऑन टू के लिए आएगा तो हम क्या करेंगे ऑन टू में. सो दिस इज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू. यू हैव टू फाइंड वेदर दिस फंक्शन इज ऑन टू और नॉट. Okay, now let's take the next question, which is question number 3. Question number 3 हम पढ़ेंगे क्या है यहाँ पर. Given a non-empty set x, consider p of x, which is the set of all subset of x. This you have studied in your class 11th. p of x, ठीक है. Define the relation r in the p of x as follows. अभी p of x हमारे पास सेट है, ठीक है. p of x में हमारे पास सेट्स है, अब उसमें से रिलेशन बनाना है. रिलेशन कैसा बन रहा है, फॉर सबसेट a एंड b सबसेट्स हैं जो कहाँ पर हैं, p of x में है. a रिलेटेड टू b, अब ये दोनों जो सेट्स हैं a और b, वो कब रिलेट करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ a इज़ अ सबसेट ऑफ b, अगर a b का सबसेट होगा. मतलब ऐसे हमें रिलेशन बनाने हैं जिसमें अगर दो जो सेट्स हैं उसमें से एक जो होगा वो दूसरे का सबसेट होगा. इज़ आर एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन p ऑफ x, जस्टिफाई योर आंसर. तो इसमें शो दैट नहीं बोला है, इसमें हमें ढूंढना है, हमें चेक करना है कि आर इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं, ठीक है. सो लेट्स डू दिस. Now in case of reflexive, what we will take, we have to take the same set a and a रिलेटेड टू a दिखाना है हमें. तो a रिलेटेड टू a होगा क्या, मतलब कि a सबसेट है a का ऑलवेज, है ना, क्योंकि कोई भी जो सेट होगा वो हमेशा खुद का सबसेट होता ही है. तो a इज़ अ सबसेट ऑफ a, दिस इज़ ऑलवेज ट्रू. सो दैट इम्प्लाइज दैट a इज़ रिलेटेड टू a, ठीक है. सो दिस इम्प्लाइज दैट r इज़ रिफ्लेक्सिव. जो यहाँ पे हमारा रिलेशन है, ये हमारा r है बीच में, ठीक है, ये रिलेशन है. सो दिस r इज़ रिफ्लेक्सिव. Okay, now let's do this for symmetric. Now in case of symmetric we have to consider two sets a and b which are in p of x, ठीक है, such that a is a subset of b. Now if a is a subset of b, तो क्या b सबसेट हो सकता है a का, इसमें से सेट छोटा कौन सा है, a सेट छोटा है, ठीक है. तो a तो है वो सबसेट है b का, बट b कैन नॉट बी सबसेट ऑफ a, उल्टा हम नहीं लिख सकते हैं. सो यू कैन नॉट राइट, सो दिस इम्प्लाइज दैट b कैन नॉट बी अ सबसेट ऑफ a.
अब B सबसेट अगर A का नहीं होगा तो दैट मीन्स B इज़ नॉट रिलेटेड टू A, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, A और B तो हैं रिलेटेड, ठीक है, सच दैट दिस, सो दिस इम्प्लाइज दैट A इज़ रिलेटेड टू B। A रिलेट कर रहा है B के साथ, लेकिन B जो है वो रिलेट नहीं कर रहा है A के साथ, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, सिमेट्रिक नहीं है, F इज़ नॉट सिमेट्रिक। Now let's do this for transitive. Let A, B, C belongs to P of X such that A is a subset of B and B is a subset of C. Okay, that is, you have that A is related to B and B is related to C. तो ये तो बहुत ऑब्वियस है ना, कि A जो है वो सबसेट है B का और B जो है वो सबसेट है C का, तो क्या A सबसेट नहीं होगा C का, होगा, है ना, ऑब्वियस है। सो दैट इम्प्लाइज दैट A इज़ अ सबसेट ऑफ C, सो दैट मीन्स A इज़ रिलेटेड टू C, ये भी ट्रू हो गया। सो देयरफॉर द फंक्शन इज़ ट्रांजिटिव, सॉरी देयरफॉर द रिलेशन इज़ ट्रांजिटिव। तो ये रिलेशन हमारा कैसे आया है, दिस इज़ सिमेट्रिक, दिस इज़ ओके, सो ये रिलेशन हमारा कैसे आया है, दिस इज़ रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। ओके, so this is not an equivalence relation, so therefore R is not an equivalence relation. Okay, now let's see question number 4, where we have find the number of all onto functions from the set which is 1 2 3 up to n to itself. Okay, so it is a finite set 1 2 3 up to n and it maps to itself. So let's see the solution. Okay, now as the two sets, the domain and codomain, are finite, so we have one condition, we have one result, that when the domain and codomain are the same finite set and onto function is also a 1 1 function, मतलब ये जो हमारा onto function होगा वो 1 1 भी होगा। और 1 1 के लिए हमने ऑलरेडी प्रूफ कर रखा है कि अगर हमारे पास 1 1 होगा फंक्शन फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट, तो वो हमें परमुटेशन देगा, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देगा फ्रॉम दिस सेट टू this set. Okay, now since each element in the domain maps to a unique element in the codomain, क्योंकि अगर ये 1 1 फंक्शन है तो इसका मतलब एक एलिमेंट सिर्फ एक एलिमेंट को ही मैप करेगा कोडोमेन में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेंज और कोडोमेन दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, नाउ व्हेन रेंज एंड कोडोमेन इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये ऑनटू फंक्शन भी बन रहा है, और क्योंकि दोनों इक्वल हैं, मतलब 1 1 और ऑनटू फंक्शन दोनों का आंसर हमारा सेम आने वाला है। ऐसे केस में जहाँ पे दोनों के एलिमेंट्स भी सेम है, डोमेन और कोडोमेन के, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितना मिल रहा है हमें, n फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैसे आएगा, जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट है हमारे पास 1, तो 1 के लिए कितनी चांसेस हैं सेलेक्ट करने के लिए, आउट ऑफ n एलिमेंट्स n है, nc1। वैसे ही नेक्स्ट एलिमेंट के लिए अभी एक एलिमेंट चला गया तो नेक्स्ट के लिए n-1, लाइक दिस यू हैव द चांसेस फॉर ईच एलिमेंट, तो ये क्या बन जाता है हमारा n फैक्टोरियल। Let's take the last problem of this exercise, where we have the function where we have the set A as -1 0 1 2, B is another set which is -4 -2 0 2, and you have two functions f and g, both are from A to B and they are defined by the function fx which is given by x square minus x, where x belongs to A। फर्स्ट जो A set है वहाँ से एलिमेंट्स लेने हैं and you have to form the function fx। Same way you have gx, where gx is equal to 2 absolute value of x minus 1 upon 2 minus 1। Okay, again you have that x belongs to A। Now the question is, are f and g equal? क्या ये दोनों फंक्शन इक्वल होंगे? ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। सो इन जस्टिफिकेशन यू हैव टू राइट अबाउट ईच एंड एवरी एलिमेंट फ्रॉम दिस सेट A। हम यहाँ पे A की वैल्यूज़, यहाँ पे जो x है उसकी वैल्यूज़ A से पुट करेंगे और चेक करेंगे कि हमारा आंसर क्या आ रहा है। अगर ये fx का आंसर सेम होगा gx के आंसर के लिए, तो दैट मीन्स दीज टू फंक्शंस आर इक्वल। सो लेट्स डू दैट। सो यू हैव दिस fx, तो fx के लिए हम क्या लिख सकते हैं, so you have f of -1, what about -1, it is -1 square into minus of -1, so you have -1 square is 1 minus minus plus 1, so it is 2। Okay, now what is f of 0, f of 0 is 0 square minus 0, so it is 0। what about f of 1, f of 1 is, put 1 in place of x, so it is 1 square minus 1, so it is 1 minus 1, it is 0। Okay, so we are getting the 0 2 0 then 0, then we have f of 2, so in place of x put 2, you have 2 square minus 2, that is 4 minus 2, that is 2। Okay, so we have got these values for the function f। Now same way you have to find for g।
So for g you have g of minus 1. Okay, g of minus 1 is what? G of minus 1 is 2 x minus 1 upon 2 minus 1. So g of minus 1 means, okay, so this is g of x actually. So g of minus 1, so it is minus 1 minus half minus 1. So ये क्या हो जाएगा? This is 2, this is minus 2 minus 1 upon 2 minus 1. इसका LCM लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 2. यहाँ पे हमारा एब्सोल्यूट वैल्यू है तो ये हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2, लेकिन वो बन जाएगा 3 अपॉन 2 माइनस 1. 2 गेट कैंसिल, सो वी हैव this is equal to 3 minus 1, so that is equal to 2. Same way you have to find g of 0. g of 0 क्या हो जाएगा? 2, 0 minus half minus 1, so that is equal to 2 in bracket half minus 1. This 2 get cancel, 1 minus 1 is 0. Then you have g of 1, which is 2, 1 minus half minus 1. So you have 2, ये माइनस करेंगे 2 minus 1 upon 2 minus 1. तो यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा? This is 2 minus 1 upon this. So you have 2 get cancel. So you have again 1 minus 1, which is equal to 0. So same way here also we are getting 0. This value is 0. This is 2. And the last value at g is equal to 2. So what about that value? So g is equal to 2. So it is 2. 2 minus 1 upon 2 minus 1. So this value is 2 to the 4 minus 1 upon 2 minus 1. So this is 1, 3 upon 2 minus 1. कितना हो जाएगा? 2 cancel हो जाएगा. 3 minus 1 is 2. So as you can see that f of minus 1 is 2, which is same as g of minus 1. The next value is f of 0, which is equal to 0, which is same as g of 0. Then you have next value as 1. f of 1 is 0, which is same as g of 1. Then you have next value f of 2, which is equal to 2, which is same as g of 2. So as each element produces the same value, that means the functions f and g are equal. So this is your answer.